Welcome back. Today let's move ahead with our next form of our industry, and that's paper industry. So up till now we had been doing various agro-based industry, that is agriculture related industry like sugar industry, jute industry, cotton textile, silk, and one year we are going to deal with is paper industry, which is made out of softwood. So paper is made out of softwood, bamboo, grass, molasses, etc. It's produced in Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Karnataka, Gujarat, MP, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Haryana. Now, molasses means the residue part of, you can call, of the sugar cane के शुगर केन जूस निकालने के बाद जो रेसिड्यू रह जाता है, दैट इज कॉल्ड मोलासेस, राइट? सो पेपर इज मेड फ्रॉम दैट ऑल्सो. Then there are mineral based. Now the second topic, a new topic, is related to mineral based industry, and I had already sent you 3 videos. 3 more videos will be sent today after this lecture. So keep on repeating, read the textbook on and on, and that will help you in scoring marks. If at all you intend to score marks, I would suggest to go through the video lectures, extra short videos as a helping hand, and textual reading, of course. So mineral based industries, those industries wherein minerals are used as raw materials are known as mineral based industry. Now industries such as iron, steel, aluminium, copper, chemical, fertilizer, cement, means of transportation, electrical goods are mineral based industry. तो एक हमने किया एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब यू हैव ऑलरेडी अप टिल नाउ अंडरस्टूड वेरी मच इन डिटेल. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनके रॉ मटेरियल मिनरल्स हो. रॉ मटेरियल में अगर एग्रीकल्चर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी सीन आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, केमिकल, फर्टिलाइजर, एक्सेट्रा. सो लेट्स सी इन डिटेल वेरियस इंडस्ट्रीज. So first, very important, your 3 marker could be asked as 4 marker too. Iron and steel industry. Iron and steel industry is the axis, that's the topmost, you can say, of modern industrial and economic development, and it is considered to be the base industry. So as I told you that iron and steel industry you are going to learn, very much important for a 3 to 4 marker. और ये सबसे टॉपमोस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, दैट इज एक्सिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है तो नेचुरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. इट इज सेड टू बी द बेस इंडस्ट्री, रूट, द पिलर फॉर द कंट्री डेवलपमेंट. मशीन एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन. This can be considered as a key industry. Key industry means very important industry without which the development of any country is not possible. Process of making iron is very old in our country. Iron was imported initially, it was imported from India to make swords in Damascus. तो लोग इंडिया से आयरन ले जाते एंड स्वॉर्ड बनाते Damascus में. The first factory in India to produce iron was established at Porto Novo in Tamil Nadu. Learn it. It was closed due to some reason. A successful production of raw iron was made at Kulti. In 1907, factory established at Jamshedpur started producing iron steel on a large scale. Factories were established at Burnpur in West Bengal, Bhadravati in Karnataka. Iron and steel factories also established at Bhilai, Rourkela, Durgapur. And other large scale industries or factories are found at Bokaro, Vishakhapatnam, Salem. So Salem के जो स्टील है is world famous, is very, I would say, the best quality steel. जो यूटेंसिल्स हम घर में यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं स्टील के, तो सैलम के माना जाता है दी बेस्ट क्वालिटी. आयरन और कोल, लाइम, स्टोन, मैंगनीज are used as raw material for producing iron and steel. A mini steel plant has been found near Hazira in Gujarat. The administration of all iron steel factories except Tata is handed over to Steel Authority of India Limited. That is called SAIL. Learn the full form for your 1 marker. SAIL full form is Steel Authority of India Limited. So let's see once again. Iron ore मतलब raw iron,
नॉट रिफाइंड, इट इज़ नॉट इन इज प्योर फॉर्म, उसे हम कहते हैं इम्प्योर फॉर्म को कहते हैं आयरन ओर। फिर है कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज आई यूज एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस आयरन स्टील। एक मिनी स्टील प्लांट they had found near Hazira in Gujarat, and administration of all the iron and steel factories except Tata is handed over to SAIL। मतलब इंडिया की सारी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज की देख रेख सेल कर रही है एक्सेप्ट टाटा। इंडिया रैंक्स 5th in the world in iron and steel production. Learn it. So now here you can see like a minute, one more, and here it goes, right? So you can see very clearly over here iron and steel complexes, मतलब iron and steel centers I would say। तो जहाँ जहाँ पे भी हम पिंक डॉट देखेंगे that is I would say refer the maps given in notes। हाँ, एक लेक्चर वेरी शॉर्ट लेक्चर होगा, maybe 10-20 minutes, but that will be related only to your map filling। जैसे कई चैप्टर्स कैंसिल हो गए हैं लाइक रेलवेज, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ऑल रिलेटेड टू, वो मैप में नहीं होगा। 2-3 मोर चैप्टर्स आर कट ऑफ रिलेटेड टू ज्योग्राफी, बट जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे जैसे कि 10 चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 11 चैप्टर है, फिर ये 13 चैप्टर, ये 3 मैप में बोर्ड में आएंगे तुम्हें, तो ये 3 हमें परफेक्ट करने हैं जिसके रिलेटेड मैं एक लेक्चर रखूँगी। सो देयर आई शो यू हाउ टू फिल इन। फिर से एक बार कह रही हूँ, सारे स्टेट ये जो है वो लर्न कर लेना, ठीक है, देन विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आयरन एंड स्टील कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ पे है, राइट। अब तुम अगर इसको केरला कहोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज केरला, उसके ऊपर कर्नाटका, राइट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से तुम्हें सारे लर्न करने हैं, सारे स्टेट, फिर फिलअप करना इजी हो जाएगा अगर तुम्हें स्टेट पता है। अब सैलम है तमिलनाडु में, राइट, तमिलनाडु के नॉर्दर्न सेक्शन में नियर द बॉर्डर। नाउ एज यू गो टुवर्ड्स कर्नाटका यू हैव भद्रावती। पिक अप अ हिंट एवरी टाइम कि यहाँ पे जैसे ये नॉर्थ ऑफ द स्टेट, दिस इज समवेयर अ बिट ऑफ मिड नॉर्थ, कम अबव इट देयर इज विजयनगर, दैट इज एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ कर्नाटका, देन कम्स विशाखापट्टनम, राइट। अब ये है चिल्का लेक उड़ीसा, तो यहाँ पे रूरकेला, उसके बाजू में चले जाओ लेफ्ट में तो भिलाई, गुजरात चले जाओ यू हैव हजीरा, कम ओवर हियर यू हैव, ये है बांग्लादेश ऑफ कोर्स। तो उसके बाद दिस अ बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश, तो यहाँ इंडिया में आ जाओ, वी हैव दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, बर्नपुर। सो दिस यू विल हैव टू, आई एम नॉट सेइंग यू लर्न ऑल, लेकिन एटलीस्ट चलो गुजरात का लर्न कर लो, हजीरा विस ईजी, 2-3 और लर्न कर लो, साउथ के लर्न कर लो, सैलम वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम वेरी इंपॉर्टेंट, तो 2-3 तो लर्न करने ही होंगे। नाउ एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री अगर मिनरल बेस्ड हमारे कंट्री में है तो वो है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। दिस मिनरल इज लाइट इन वेट। अब तुम अपने घर में भी देखोगे तो एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा होंगे, जैसे कि व्हेन यू हैव टू, योर मदर हैव टू स्टोर वीट एंड राइस एंड शुगर एंड ऑल, तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम का यूज़ होता है क्योंकि वेट में लाइट है, उठाने में लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग होता है, मैलिएबल है, स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रस्ट प्रूफ है, ये रस्ट प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर किसी जैसे कि वीट को हम कहते हैं ना कि दिवेल लगाते हैं, राइट, तो व्हेन यू पुट दिस कैस्टर ऑयल ताकि वो पूरे साल अच्छा रहे वीट स्टोर में, तो हम कैस्टर ऑयल लगाते हैं। राइस में भी कुछ ऐसा ही कुछ करते हैं या गोलियां डाल देते हैं। तो अब अगर इसे स्टील के बर्तन में डालो स्टोर करने, स्टील के बिग कंटेनर में, तो रस लग जाएगा। तो व्हाट वी डू इज कि एल्यूमिनियम के बड़े बड़े स्टोर करने के लिए डिब्बे होते हैं एंड टंकी भी होती है लोगों के यहाँ, तो
एल्यूमिनियम की बनी, जिसके अंदर वो पूरे साल या 2 साल का स्टोर कर देते हैं, वीट, राइस एट्सेट्रा, क्योंकि वो रस्ट प्रूफ है. बॉक्साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, is the aluminium ore. Other minerals are mixed with aluminium which is useful in making cars, railways, aeroplanes, machines. तो बाकी के मिनरल हम एल्यूमिनियम से मिक्स करते हैं to make all these things. About 40 to 50% of expenditure is incurred in electricity. अब जब एल्यूमिनियम की फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो होता क्या है इस इंडस्ट्री में कि अगर say for example this one thing is made of aluminium, I hope you can see it clearly. ये एल्यूमिनियम की एक चीज़ है जो 100 रुपये में हमें खर्चा हुआ सिर्फ बनाने का, अभी हमने मार्केट में नहीं रखा है, तो 100 रुपीज़ कॉस्टिंग. जैसे कि उसमें एम्प्लॉयज़ के इनकम डाल दी, इलेक्ट्रिसिटी डाला कितना यूज़ हुआ, और रॉ मटेरियल का खर्चा डाला, टेलीफोन कितने किए 1 महीने में वो डाले, तो एक पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 100 रुपीज़. प्रॉफिट बाद में डालेंगे, सेल प्राइस अभी नहीं निकाली, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस मतलब इस एक एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा हुआ 100 रुपये. तो 100 रुपये में हमने सब कुछ डाल दिया, टेलीफोन का खर्चा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, पानी मंगवाया, किसी को चाय पिलाई, दिस दैट, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग डाल दिया, राइट, इज इक्वल टू 100 रुपीज़. अभी 100 रुपीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है? 50 रुपीज़. मतलब कि ये इंडस्ट्री मैक्सिमम यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी. सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है खर्चे में? इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए ये इंडस्ट्री ऐसी जगह पे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल ईजिली और चीपली अवेलेबल हो. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इंडस्ट्री इज फाउंडेड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट अवेलेबल ईजिली. Factories producing aluminium are established at Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. अब आया कॉपर रिफाइनिंग. यूज ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज ड्यू टू इट्स फीचर्स, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज सच एज इजी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट कैन बी मिक्स विद अदर मिनरल्स इजीली. कॉपर बेस्ड बर्तन भी हम यूज़ करते हैं घर में. इट इज़ यूज दैट इज यूज डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, यूज इन फ्रिज, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, एयर कंडीशनर, electricity industry, in making of all these things also. So first copper refining unit of India was founded by ICC, that is Indian Copper Corporation, at Ghashila in Jharkhand. In 1972 ICC was handed over to Hindustan Copper Limited, HCL. Beside Hindustan Copper Limited today copper is produced by private sector also. ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब इंडिया का प्रोडक्शन इनफ नहीं है, राइट. डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है हमारी कंट्री में कॉपर का, तो फिर क्या करते हैं हम? इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट. अब आया केमिकल इंडस्ट्री. सो लेट्स मूव अहेड. सो एज वी मूव अहेड वी सी ओवर हियर अ न्यू टॉपिक नाउ दैट्स रिलेटेड टू केमिकल इंडस्ट्री. सो हियर वी हैव स्टार्टेड विथ as we saw already related to our mineral based industry, and we did iron and steel, we did aluminium, and now we move ahead towards chemical industry. Now the position of chemical industry in India is very important. सबसे important industry हमारी I would say iron and steel भी है, aluminium भी है, हर एक industry important है अपनी जगह पे. उसी तरह से chemical industry की भी position बहुत ही important है हमारी country में. Now chemicals are of two types, learn it, 1 marker के लिए, organic, inorganic chemical. Petrochemical is the main organic chemical industry. It's used in artificial fibers, artificial rubber, plastic goods, color, chemicals, medicine. Organic chemical industry is found near oil refineries, petrochemical centers. अभी organic chemical industry कहाँ पाई जाती है? तो naturally very much close to the oil refineries and petrochemical centers. Inorganic chemicals are used in phosphoric acid, nitric acid, salt, soda ash, caustic soda, chlorine, etc. India has an important position in the world in the insecticide industry. Gujarat leads in the country in chemical industry. Learn it. तो हमारी कंट्री में सबसे आगे कौन सा स्टेट है केमिकल इंडस्ट्री में? गुजरात. अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, भरूच etc. major centers of chemical industry. Now chemical fertilizer industry. First chemical fertilizer factory of India was established in 1906 at Ranipet in Tamil Nadu. Learn it. Development of this chemical fertilizer industry
started when Fertilizer Corporation of India started its factory at Sindri. This industry is centered in Gujarat also, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala. In Gujarat, these factories producing chemical fertilizer located at Kalol, Kandla, Hazira, Bharuch, Vadodara, etc. Plastic industry, very important, learn it. For 1 marker, plastic industry is also known as dash, or dash industry is also known as sunrise industry. Otherwise, all 2 marker short note. Now, there has been a continuous increase in the demand of raw material for plastic because it is waterproof, first of all. It can fit into any mold. Used in packing chemicals, textiles, building construction, vehicle manufacturing, electronics, etc. मतलब कि बिना प्लास्टिक के हम देखते हैं कि people can't move ahead in life. In each and every area we see that plastic has entered our life. It is very important. In various industries also is equally important as raw material like vehicle manufacturing, electronics, etc. we have already seen. Important centers producing plastic are Delhi, Mumbai, Calcutta, Bangalore, Baroda, Vapi, Kanpur, Coimbatore, Chennai. Cement industry. Cement is very important. Inevitable. मतलब इसके बिना नहीं चलेगा. It is utterly necessary. So cement is inevitable. For what? For road construction, dam construction, etc. बिना सीमेंट के तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे कंस्ट्रक्शन में. India ranks second after China in cement production. It produces about 6% of the world production. वर्ल्ड में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है सीमेंट उसमें से 6% तो हम प्रोड्यूस करके देते हैं, राइट. सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे चाइना, सेकेंड इंडिया. लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एटसेट्रा अदर रॉ मटेरियल यूज फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. मतलब हैवी इंडस्ट्री हुई है क्योंकि सारा रॉ मटेरियल बहुत हैवी यूज हो रहा है यहाँ पे. Raw materials and the products have more weight as I told you just now. So cement factories are located very close to where raw material is available. अब सीमेंट फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है लाइक लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एटसेट्रा वो इतने हैवी होते हैं वेट में कि फिर सीमेंट फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के पास में स्टार्ट कर देते हैं. एंड देयर इज वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ दिस सीमेंट इंडस्ट्री इन गुजरात ऑल्सो. लेट्स सी अबाउट ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री. You might have seen many types of vehicles for travel. Earlier there were animal driven vehicles. पहले गाय गधे खींच के ले जाते थे, right? Simple example, गाय गधे मतलब animals like horse driven cart, elephant were used, donkeys were used, right? Bullocks were used for various purposes. So animal driven vehicles however were very slow. Today in modern age vehicles with faster speed along with the development of road have come in use. आजकल रोड कंस्ट्रक्शन भी अच्छे हो रहे हैं, व्हीकल्स नए नए बन रहे हैं विथ फास्ट स्पीड ऑन दिस बेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन. तो यूज में ये सब आ रहा है. ऑल दिस हैव कम इन यूजेज. द इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस सच व्हीकल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, राइट. सो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री. लेट्स सी रेलवे. फर्स्ट, रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन. वाह वाह, मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहिए रेलवे सर्विसेज को इन आवर कंट्री. सो रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन ऑफ ट्रैवलिंग इन आवर कंट्री. रेलवे मैन्युफैक्चर्स द इक्विपमेंट ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ. ज़्यादातर तो रेलवे डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो प्राइवेट कंपनीज को भी वो काम देते हैं, सच एज रेलवे इंजन्स, पैसेंजर कोचेज, गुड्स कोचेज एट्सेट्रा. ये तो वो खुद बना लेते हैं. बट कई चीज़ें जैसे अंदर के सीट्स कवर हैं, एसीज हैं, कई चीज़ें हैं जो वो लोग देते हैं प्राइवेट कंपनीज को. तो रेलवे खुद क्या बनाएगी? रेलवे इंजन, पैसेंजर कोच, गुड्स कोचेज एट्सेट्रा. लेकिन ये प्राइवेटली भी बनता है. दिस ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइवेटली. अब 3 टाइप के इंजन होते थे, स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक. आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है. The steam engines are now used only for heritage train. If you go to Ooty, if you go to Kodaikanal, you will see this. Darjeeling चले जाओ, you will see this railway engine as heritage, and which are run only for tourism purpose. Diesel शिमला में है, very interesting. And diesel and electrical engines are produced at Mehijan in Chittaranjan Locomotive Works in West Bengal. Wrong spelling. डीजल लोकोमोटिव वर्क एट वाराणसी एंड टाटा लोकोमोटिव वर्क एट जमशेदपुर. तो यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं प्राइवेट कंपनीज में. पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर, बैंगलोर, कपूरथला एंड कैलकाटा.
एज आई टोल्ड यू, रेलवे डिपार्टमेंट तो बनाती ही है ये चीज़ें, लेकिन वो प्राइवेटली भी खरीदते हैं, प्राइवेट भी बनाते हैं लोग, विच हैव ऑलरेडी सीन द एग्जाम्पल्स ओवर योर, प्राइवेट कंपनीज के जो रेलवे के मटेरियल बना के सप्लाई करते हैं उनको. अब आए रोड व्हीकल. बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स बाय असेंबलिंग इट्स इंपोर्टेड पार्ट. अब इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर होती थी, लेकिन कैसे? पार्ट्स इकट्ठा करके यहाँ पे असेंबल करते थे, तो पार्ट्स इंपोर्ट करते थे हम. नाउ द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइसिकल are established in our country. The road vehicles are manufactured mostly by private sector. 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, 6-wheeler, 10-wheelers, ये रोड व्हीकल्स जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स एंड बसेज एंड कार्स एंड रिक्शाज, ये सारे रोड व्हीकल्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज में बनते हैं. सो दे आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर. इंडिया रैंक्स 5th in the world in production of commercial vehicles. Today vehicles and their spare parts manufactured in India exported to foreign countries. पहले हम import करते थे, आज हम export करते हैं. And India ranks 5th in the world in the production of commercial vehicles like trucks and so commercial use होते हैं, tempos and all. Tractors and bicycles are produced in very large scale and we export them overseas. We export them overseas मतलब दरिया पार, दूसरी कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर्स एंड बाइसिकल ऑन अ लार्ज स्केल. अब शिप बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मार्का एज वेल एज फॉर मैप फिलिंग. तो दिस इज एन एंशियंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. इन रिसेंट टाइम देयर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल. तो विशाखापट्टनम, कैलकाटा, कोची, मुंबई, मारमगोवा विच आर इन पब्लिक सेक्टर. Kochi, Visakhapatnam build ships of larger size. Private dockyards fulfill local needs. We have also started producing helicopters. Aircraft building units are established at Bangalore, Koraput, Nasik, Hyderabad, Lucknow. The buildings of aircrafts for passenger travel has still not started in our country. Our electronic industry like TV, fridge, etc. Radio set and telephone industry was established in India in 1905, even before independence. This can be said to be the beginning of electronic industry in India. BEL, that is Bharat Electronic Limited, was established after independence in 1956 in Bangalore with a main motto, that is motive, या objective या goal to manufacture equipment for Akashvani and weather department. तो बेंगलोर में जो सबसे पहले हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्टार्ट किया था इन 1956, मेन गोल था इस कंपनी का टू मैन्युफैक्चर implements, equipments for Akashvani and weather department. Today it produces various electronic equipment in joint effort, that is in collaboration with ISRO, that is with India Space Research Organization, LEARNIT. This industry has brought a lot of changes in the normal life of the people. Their lifestyle has changed, national economy has changed. Bangalore has become capital of this industry. Learn, it's called Silicon Valley of India. Software park, science park, technological park are established for the development of this industry. The future of this industry in India is very optimistic, मतलब bright, very positive. Now, industrial pollution, environmental degradation. Industries खड़ी होगी तो कंट्री तो डेवलप होगी, साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ेगा, तो कुछ तो करना होगा इसके लिए. So many rules and regulation and strict rules and regulation have been passed by our government. Industrial production has a noteworthy contribution in the economic development of the country. हर एक कंट्री का डेवलपमेंट होना डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ इस इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज पोल्यूशन ऑल्सो एट द सेम टाइम. एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड, एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है कंट्री में. व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन डिस्ट्रॉय और डिटीरियोरेट ड्यू टू नेचुरल और मैन कनेक्टेड रीजन. नेचुरल रीजन भी होते हैं लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनो, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है. मैन इंड्यूस रीजन मतलब कि हम भी थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज तो डेवलपमेंट करते जाते हैं, एट द सेम टाइम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज रिड्यूस विच इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर क्रिएटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, जो तुमने ए स्टैंडर्ड में भी डिटेल में किया था. एयर, वाटर, लैंड, नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, इस बार गरबा नहीं है तो नॉइस पोल्यूशन नहीं है, अदरवाइज अब तक तो 6 दिन का नॉइस पोल्यूशन हो चुका होता. आर यू गेटिंग इट? वाटर तो पोल्यूट करते ही रहते हैं हम, एयर पोल्यूट करते रहते हैं. हाँ, बीच में 2-3 महीने लॉकडाउन में थोड़ा कम हो चुका था, बट वंस अगेन द ट्रैफिक हैज स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर रैपिडली. लैंड पोल्यूट कर रहे हैं हम बाय थ्रोइंग द गार्बेज एंड ऑल.
So industries have polluted air and water to a large extent, that is to a great extent in the present age of competition. आजकल सबको compete करना है, डेवलप होना है, सबको फर्स्ट आना है रेस में, तो इंडस्ट्री सब अपनी डेवलप करते ही रहते हैं और इसमें एयर पोल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों की जान हानि हो रही है. The air has become polluted due to very harmful gases like carbon monoxide and sulfur dioxide. Check the spellings over here. Water pollution has increased due to industrial effluent, मतलब industrial dust and dirt की वजह से water pollute हो रहा है. Today many factories release the industrial dirt or waste in the rivers, ignoring the laws, that is not following the government rules. Water today is heavily polluted than what it was before. तो आजकल water pollution increase हो रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा. Noise pollution is one of the reasons for deafness in human life. Due to old machinery in industries and means of transportation, noise pollution has increased. Man experiences mental pressure and tension due to too much of noise. Remedies to curb, that is control. तुम stop तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को. तो रेमेडीज क्या उपाय है? The country should make progress, of course. But the progress should be made in such a way that the environment should not be destroyed, it is not degraded. The amount of pollution can be reduced with proper planning for industrial development. Pollution can be reduced also by selecting or by the selection of the good quality instrument, equipment and good quality fuel, that is oil and all. The air pollution can be controlled through filters, scrubber, precipitators, etc. The water pollution can be also reduced or prevented by releasing industrial dirt or waste or effluent after proper treatment of that dirty water. Industrial water can be purified after proper treatment. ठीक है? So complete this chapter and we next time start with I would say some ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स एंड अभी तो SS में हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है हमारा. एंड आई वुड नाउ ऑफ कोर्स सजेस्ट दैट इज़ टाइम फॉर यू टू रिवाइज. तो कहीं ना कहीं MCQ के एग्ज़ाम लेते रहेंगे हम आपकी, और ग्रामर में रीस्टार्ट कर रही हूँ. सो एनी पर्सनली कोई ग्रामर के तुम्हारे अगर डाउट्स तुम्हें क्लियर करवाने हैं तो वो तो तुम पर्सनली सिंगल हैंडेडली 1-to-1 तुम डाउट सॉल्व कर सकते हो. मुझे फ़ोन कर लो या वीडियो कॉल कर लो. दैट विल बी मोर इजी एंड गुड फॉर यू एज पर्सनल लेवल पे. लेकिन अगर तुम्हें कोई पूरा टॉपिक रिपीट करवाना है तो व्हाट्सएप कर देना या पर्सनली कॉल कर देना, तो उसका भी एक वीडियो बन जाएगा. लेकिन माय नेक्स्ट जो मेरी अभी जो थॉट प्रोसीजर कहती है, दैट आई वुड मेक अ शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू सॉल्व योर पेपर्स and your map filling, how to do it and what neatness is required and all. So we move ahead in the next week with all these small topics, and thank you once again. So few videos once again will follow this lecture. Thank you, take care all of you, and thank you for your great support in my this 15 days of living in that room all alone. So thank you to all my dear students जिन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा टाइम पास भी करवाया. Great support from you and your parents. Thank you once again.